दिल्ली के द्वारका स्थित रेडिसन ब्लू होटल में रोशनी, रंग और रैंप की एक शाम कुछ खास रही, जहां फैशन और समाज सेवा का अनोखा संगम देखने को मिला। बुजवे फैशन स्टूडियो और एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में इस शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आईं कई नामी गिरामी महिला और पुरुष मॉडल्स ने भाग लिया। फैशन शो में न सिर्फ मॉडल्स ने अपनी प्रस्तुति से रैंप पर जलवे बिखेरे, बल्कि समाज के प्रति जागरूकता और सहयोग की भावना भी उजागर की। कार्यक्रम में शामिल हुए कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके सामाजिक योगदान के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। यह सिर्फ एक फैशन शो नहीं, एक सोशल कॉज भी था। बुजवे फैशन स्टूडियो की एक नई सोच, आयोजकों में से एक ने कहा। इस अवसर पर बुजवे फैशन स्टूडियो ने नोएडा में अपने नए स्टूडियो के लॉन्च की भी घोषणा की, जो आने वाले समय में टैलेंट को एक नया प्लेटफॉर्म देगा। बुजवे फैशन शो ने फैशन को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित न रखकर उसे समाज सेवा से जोड़ा। From Bujwe Fashion Studio. Hello, I'm Rosvi Subba, the curator of Solo Work. Hi, I'm Z from Bujwe Fashion Studio. तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके इस शो का? अच्छा, I thought of one thing, like we usually see lot of labels on one platform, but this is something where we wanted one designer showcasing their collections on a single ramp. What is the difference between two designers? See, here what happens is single designer showcasing their designs which are made as per the seasons, as per the theme. So here what we could today see during this Solo Work event is they were able to showcase what they have created in a singular way and with their own clients and of course the kind of people who they have been catering to, which are mostly international people. I think if you look at the videos you might get to know that also. So that is what we call like a difference here. The name itself signifies it's of solo. So Vogue means a style which is in fashion. So they are all about fashion. The duos who are well known, not just in India, but internationally as well. And they have also showcased their designs in London Fashion Week and also in Paris Fashion Week. Yeah. How was your experience? It was wonderful. Always wonderful work with Rajni because she has a wonderful ideas to showcase the collection. And I have worked with so many stars in India also and abroad also. We have done so many shows. But this time her idea was we have to showcase our collection in a very unique and a different way. It was not only in the single stage, like a ramp show going on, models are coming and going. We wanted to do in a very different small space also, but yet it should be very innovative so people can see what we are going to showcase. Anyone can see from anywhere, any angle. There is no camera angle, there is no restrictions. It was totally free. It was not like that the model have to do the only zombie walk. They were interacting with the people. So this was the idea. We wanted to create something very new. And about the collection, definitely every time I create very innovative and different things. Every time I have tried to create because I have a clientele, they are very urban and modern. So they always feel like to do experiment. So in my ideas, you can see the very blend of Western, Indian and fusion. So every time I do like that. So this time also we have tried a lot. Thank you so much Rajni for giving us such a very beautiful opportunity. We always say thank you for this. Thank you. Sir, your experience. One designer, one show that is called Solo Vogue. ये रैम्प जो है जनरल पीपल के लिए हमने बनाया था। जनरल पीपल के लिए हमने इसको रखा। कोई बैंक्वेट हॉल नहीं किया, कोई भी ऑडिटोरियम नहीं की कि वहाँ स्पेसिफाई जो चुनिंदे लोग आते हैं वही आके शो देखे। यहाँ जनरल पीपल इस होटल में अपने रूम से भी लोग देख रहे हैं। जनरल लोग जो आ रहे हैं वो भी घूम के देख रहे हैं शो को। बहुत ही जनरलाइज रूप में ये शो को हमने किया है, जो कि कोई भी इस शो को देखे और देख के सराहे कि ये कैसा शो है, कैसे ड्रेसेस हैं, कैसे आउटफिट बनी हुई है।
तो सब लोग इसको देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। और ये एक तरह का हम नया इनोवेशन किए, नए तरह का किए हैं। और सबको पता होगा कि देखेंगे ये शो जनरली बाहर की ओर विदेशों में ज़्यादातर होता है और इंडिया में फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो नेचुरली नया है, सबके लिए नया है, हम मेरे लिए भी नया है, आप सबके लिए भी नया है और आई थिंक सबको अच्छा लगा। सर मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ, मतलब ऑडियंस को जो हमारे यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं, बाहर से भी आके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक स्पेसिफाई नहीं था जो हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे ही गेस्ट बैठ रहे हैं, बाहर के भी लोग देख रहे हैं, तो कुछ तो मैसेज होगा आपका। डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ये शो मैं अभी वही बोला कि ये शो एक्चुअल किसी स्पेसिफाई क्लाइंट्स के लिए नहीं, स्पेसिफाई किसी पीपल के लिए नहीं है, ये जनरल सबके लिए, सब लोग आके इसको देख सकता है, देख के और उस जो भी कलेक्शन है उसको देख के इम्प्रेस हो सकता है। अगर उन्हें अच्छा लगा तो डेफिनेटली वो आगे बोलेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे और लोगों से बोलेंगे कि मैंने ऐसा शो देखा, इस तरह का ड्रेसेस देखे, ऐसा कलेक्शन देखा जो कि हमने नहीं देखा था। तो डेफिनेटली सबके लिए नया है और अच्छा है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जनरली फैशन शो इज़ ऑल अबाउट द स्टेज शो। पीपल ऑलवेज हैड ए फीलिंग कि फैशन शो क्लॉथ्स आर ओनली फॉर द मॉडल्स। Common people can't wear this thing, but in my style everyone has seen, and I always had tried in my style anybody can wear my cloth. It's very glamorous, very innovative, very stylish, but it's a common people can wear and they can flaunt themselves. They feel like I'm looking best. This is all about that. This is the message I'm giving to everyone. The designer clothes are not only meant to be only models. Any common people can also wear designer clothes and they look beautiful. And last, my son is going to say something about our store and studio. So just we want to give him mic only. Hi, I would like to share the thought that Uze Fashion Studio is not only a fashion house. It's basically all about giving chances to people to wear the extraordinary designs and showcase themselves in a good manner, in an exclusive manner. So keeping the thought in mind, we are opening up our new store in Noida very soon, and it will be branch of Uze with the same elegance and style, and it will be the first store in Noida. So I hope that it goes well, and we will try to serve the people with the extraordinary outfits so that they can look real good and exclusive. Thank you. Thank you so much. मैम जैसे हमने देखा यहाँ पे फैशन शो है, और इससे भी पहले आप जैसे आप बता रहे कि टीवी एक्टर से प्लस कई सारी आप सोशल एक्टिविटी कर चुकी है, तो इसका क्या आपके पास मैम यानी बेनिफिट, और इससे कैसे आपने स्टार्टिंग कैसे किया इसका और कैसे आपने किया था? ये फैशन शो जो है, आज का फैशन शो, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका एक पर्पस भी है, इसलिए हमेशा हर एक जो एक्टिविटी होती है जो आर्ट या कल्चर या फैशन को प्रमोट करती है, मैसेज जरूर देती है। तो आज का जो ये अजय म्यूजिक फैशन स्टूडियो की तरफ से है, ये रजनी सुब्बा जो है वो उन्होंने एजुकेशन पैजेंट की वो ओनर है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और एहसास ग्रुप जो है इसमें साथ दे रहा है। बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसका नाम है सोलो वोग। वोग माने होता है फैशन, तो फैशन और एक ट्रेंड जिसको कहते हैं, तो एक बहुत ही ट्रेंडी सा डिज़ाइन उन्होंने डिस्प्ले किया। और जहाँ तक रही मेरी जर्नी की, तो क्योंकि मैंने हमेशा से मीडिया में और बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चली हूँ, तो मुझे ऐसे हर एक काम में बहुत शिरकत करना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी जहाँ भी कोई फैशन हो, कोई मैसेज हो, वहाँ मुझे आकर मुझे लगता है मैं अपने जो ड्रीम्स है उसको और बड़ा कर पा रही हूँ, अपने मैसेज को दूर तक पहुँचा रही हूँ। मैसेज ये है कि फैशन यानी नवीनता को हमेशा अपनाए रखिए। जीवन में कुछ भी हो, चाहे देखिए चैलेंजेस हर किसी को आता है, पर चैलेंजेस को दूर करना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और फैशन रैम्प वॉकिंग तो सिर्फ कॉन्फिडेंस का नाम है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने आज का शो एक्चुअली ओपन किया एज अ टीवी एंकर, एज अ डिविनिटी साइंटिस्ट। मैंने जब ये शो ओपन किया तो मुझे खुद लगा कि मैं यहाँ पर आकर एक नई एनर्जी का जो है अनुभव कर रही हूँ।
बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छे क्राउड, बड़ा मैंने अवांग गाड़े क्राउड यहाँ है। और ये इतने अच्छे वेन्यू में जहाँ पर आप देख रहे हैं रेडिसन ब्लू द्वारका में हो रहा है। और हम लोग जिस तरह से एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं एस्केलेटर से, कैप्सूल लिफ्ट से, फैबुलस, बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में नवीनता को दिखाता है। और नवीनता ही हर एक जीवन की पहचान है। यदि आपके अंदर नवीनता नहीं है तो आप सड़ने लग जाते हो। सड़ना नहीं चाहिए, हम सबको हमेशा जिंदा दिल रहना चाहिए।